Now today we are going to start with chapter number 3, the skeleton system. ठीक है, इस चैप्टर में हम ऑर्गन सिस्टम, हमारा ह्यूमन सिस्टम, नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे और पार्ट्स ऑफ द बॉडी पढ़ेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर और स्टार्ट विद चैप्टर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द ऑर्गन सिस्टम. The human body is really amazing. It can do more than one action at same time. It consists of many organs, each of which performs specific function. A group of organs together makes up organ system. The different organs and organ systems work in a coordinate manner so that human body is able to do different activities and life processes. देखो, जो हमारी बॉडी है वो रियली बहुत ही अमेजिंग है और इसमें अलग अलग पार्ट्स हैं जो क्या बनाता है, एक ऑर्गन सिस्टम बना. ठीक है, और वो बॉडी पार्ट्स क्या करते हैं, हमारा हेल्प करते हैं. देखो, हैंड से हम लिख भी सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं. ठीक है, अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग वेज में हमारी हेल्प करते हैं. ठीक है, द डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट इन आवर बॉडी. अब नाउ आई विल टेल यू कुछ अलग अलग ऑर्गन सिस्टम होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं. जस्ट फर्स्ट इज डाइजेस्टिव सिस्टम. It breaks down the food into smaller and simpler form which can be utilized by the body. Respiratory system, it supplies oxygen to the body and removes carbon dioxide from the body. अगर हम respiratory system की बात करें, ये ऑक्सीजन सप्लाई करता है और क्या रिमूव करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को. क्या करता है, ऑक्सीजन को तो सप्लाई करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी बॉडी से रिमूव करता है. Next is circulatory system. It transport food, chemical, gases and waste matter in the body. ये food हो गया, chemical हो गया, blood हो गया, ये transport करता है हमारी body से. Skeleton system, it gives shapes to our body and helps in movement. Next is skeleton system, जो हमारी body को shape करता है और movement में help करता है. Now muscular system, it helps to maintain posture of the body, helps in movement and doing physical work. ये posture को maintain करता है और हमें physical work करने में हमारी help करता है. Nervous system, it helps in recognizing things and changes around us, controls different body function and makes thinking possible. ठीक है, ये control करता है हमारे body function को और thinking को क्या करता है, possible करता है. Excretory system, it removes undesirable waste from the body. Reproductive system helps in the birth of the baby. Endocrine system, it controls and coordinates body function with help of chemical. देखो, excretory system जो होता है वो हमारी बॉडी से वेस्ट को निकालता है. ठीक है, और जो हमारा reproductive system होता है उसमें हम क्या करते हैं, it helps in the giving birth to the baby. And last is endocrine system, जो हमारी बॉडी के जो पार्ट्स को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट. The skeleton system and muscular system work together closely to make movement of the body possible. In this chapter, you will study the skeleton system and learn how muscle help in moving the bones. क्या हमारी जो muscles हैं वो हमें कैसे help करती है move करने में. Now, human skeleton. The human body can be compared to paper lanterns that you read about. Just as a wooden stick or wire from the framework of the lantern, the human body gets its shape because framework of the bones are called skeleton. जो framework होते हैं हमारी bones से उसे हम क्या कहते हैं, skeleton कहते हैं. और आपने देखा होगा कि हम move कर रहे हैं, अपने hands को चला रहे हैं, किसकी वजह से चला रहे हैं, skeleton system की वजह से. ठीक है, अगर ये नहीं होते तो हमारी body की ना shape होती और हमारी body क्या हो जाती, टूट जाती. An adult body has 206 bones. New babies has 300 bones. As they grow, some of the bones fuse together. देखो, एडल्ट की 206 बोन होती है और जो बेबी होता है उसकी 300 बोन्स होती है. जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, एडल्ट होते हैं, तो हमारी बोन्स क्या होती है, दूसरी बोन्स के साथ फ्यूज कर जाती, मिल जाती हैं. द बोन्स ऑफ आवर बॉडी आर हार्ड फ्रॉम आउटसाइड बट स्पॉन्जी इनसाइड. द लॉन्ग बोन्स ऑफ द बॉडी कंटेन सॉफ्ट मटेरियल कॉल्ड बोन मैरो. ठीक है, जो हमारी बोन्स होती है वो बहुत हार्ड होती है. ठीक है, नेक्स्ट इज पार्ट्स ऑफ स्केलेटन. अब हम कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे स्केलेटन के. Now, the skeleton has different parts. Skull bone. It is made up of 22 bones. 8 flat bones are interlocked together. They give shape to our head. 14 bones from the frame of the face. The lower jaw is fixed to the upper jaw. We can move only the longer jaw. जो lower jaw होता है उसको ही हम move करते हैं. The skull protects the delicate brain. The skull also has holes of the eyes and nose.
देखो ये 22 बोन्स का बना है, 8 फ्लैट बोन्स है और आईज और नोज के क्या दिए हुए हैं, होल दिए हुए हैं। ठीक है, ये हमारे ब्रेन को कवर करता है। स्कल जो होता है वो हमारे ब्रेन को कवर करता है। ठीक है, और अपर, इसमें 2 जॉज होते हैं, अपर एंड लोअर जॉ, और जो लोअर वाला जो होता है हम खाली उसको ही मूव कर पाते हैं। नेक्स्ट इज बैकबोन और स्पाइन। द स्पाइन और द बैकबोन इज मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ 33 स्मॉल इर्रेगुलर बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रा. The backbone is called vertebral column. It is attached to the skull at the top and goes till the hip bone. The backbone helps us to bend, turn, twist. It protects the spinal cord. जो spine होती है और backbone होती है उसमें 33 pairs of bones होते हैं। ठीक है, वो हमारे हेड से लेकर नीचे हिप तक ज्वाइंट होती है, जिससे जो हमें हेल्प करती है बैंड करने में, टर्न करने में और लेफ्ट राइट मूव करने में। ठीक है, रिब केज. Rib cage is a cage of bones around the chest called rib cage. The rib cage protects our heart and lungs. Most people have 12 pairs of rib. A long bone at the center of the chest is called sternum. देखो rib cage क्या होता है, हमारे चेस्ट के अराउंड बोन्स का बना होता है। ठीक है, उसे हम rib cage कहते हैं। ठीक है, ये हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, 12 pairs होते हैं and holds the rib in place. The ribs are also attached to the backbone. However, last pair of ribs are not attached to the sternum and so are called floating ribs. जो लास्ट वाले होते हैं वो अटैच नहीं होते, इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। You can feel your ribs by running your finger across your chest. ठीक है, आप रिब्स को जब अपने चेस्ट पे हाथ फेरेंगे तो आपके अपने फिंगर्स पे वो फील होंगे। Now the limbs, arms and legs. Limbs क्या होते हैं, हमारे आर्म्स और लेग्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, लिम्स कहते हैं। The hip bone is made up of 3 bones joined together. The bones of the lower limbs, legs are attached to the hip bone. Hip bone हमारी 3 बोन की बनी है और एक साथ ज्वाइन है, और जो लोअर वाली है वो किससे ज्वाइंट है, हमारी लेग बोन किससे ज्वाइंट है, हिप बोन से। The upper half of the leg has a long bone called femur or thick thigh bone. It is the longest bone in the body. The lowest half of the leg has shin bone and calf bone. At the end of each leg there are feet which have number of small bone. देखो आपको नहीं पता है, सबसे लॉन्गेस्ट बोन होती है जिसे हम फेमोर कहते हैं और थाई बोन भी कहते हैं। ठीक है, द अपर आर्म इज जॉइंट टू द स्पिन बाय द शोल्डर ग्रिडल. जो अपर बोन होता है वो स्पिन हमारे जो शोल्डर ग्रिडल होता है उससे जॉइन होता है। इट इज मेड अप ऑफ बोन्स, द शोल्डर ब्लेड एंड द कॉलर बोन. ये 2 बोन्स का बना हुआ है, एक तो कॉलर बोन हो गई और एक शोल्डर बोन हो गई। द अपर आर्म हैज 1 लॉन्ग बोन कॉल्ड ह्यूमरस. जो अपर आर्म होता है बड़ी लॉन्ग बोन होती है, इसे हम हेमोर कहते हैं, और जो लोअर आर्म होता है उसमें 2 लॉन्ग बोन्स होती है, ब्रिस्ट एंड हैंड्स हैव सेवरल स्मॉल बोन, और ब्रिस्ट और हैंड में हमारी और अदर बोन्स होती है। द थाई बोन और फेमोर इज अटैच्ड टू द हिप बोन और पेल्विक ग्रिडल. जो थाई बोन होती है जिसे हम फेमोर कहते हैं वो किससे ज्वाइन होती है, आपकी हिप बोन. जॉइंट इज द प्लेस वेयर 2 बोन्स मीट. बोन्स आर हेल्ड टुगेदर एट जॉइंट्स बाय इलास्टिक टिश्यू कॉल्ड लिगामेंट. जो बॉन्स हैं वो जॉइंट्स है विद द इलास्टिक टिश्यू जिसे हम लिगामेंट्स कहते हैं. अ फर्म फ्लेक्सिबल इलास्टिक टिश्यू कॉल्ड कार्टिलेज कैन बी फाउंड बिटवीन द बोन्स एट द जॉइंट. जॉइंट्स के बीच में हमें क्या मिलता है, कार्टिलेज मिलता है. नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ बोन्स. काइंड्स ऑफ जॉइंट्स. जॉइंट्स आर ऑफ 2 टाइप. 2 तरीके के जॉइंट्स होते हैं. फर्स्ट इज इमूवेबल एंड सेकंड इज मूवेबल. जिनको हम मूव कर सकते हैं उन्हें हम मूवेबल जॉइंट्स कहते हैं, और दोज विच वी कैन नॉट मूव इज नोन एज इमूवेबल जॉइंट. These are the joints where bones are held together tightly and cannot move. Most of the joints in the skull are immovable. देखो जहाँ पे joints एक साथ हेल्ड तो है, मिले हुए हैं, लेकिन हम मूव नहीं कर सकते. जैसे स्कल, वो कौन सा कैसा जॉइंट होता है, मूवेबल. इनमूवेबल जॉइंट्स होता है. मूवेबल, these are the joints that allow movement of bones. मूवेबल जॉइंट्स आर ऑफ 4 टाइप. देखो मूवेबल जॉइंट्स क्या होता है, जिसमें जॉइंट्स क्या करते हैं, मूव कर. 4 टाइप्स के होते हैं हमारे मूवेबल जॉइंट्स. फर्स्ट इज पिवोट जॉइंट, सेकंड इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट एंड स्लाइडिंग जॉइंट, हिप जॉइंट. सबसे पहले हम पढ़ेंगे पिवोट जॉइंट. दिस जॉइंट इज फाउंड बिटवीन स्कल एंड द बैकबोन. दिस जॉइंट हेल्प्स अस टू मूव आवर हेड अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड साइडवेज. ये आपको स्कल, आपका जो स्कल होता है उससे और बैकबोन के बीच में मिलती है, जिसमें आप अपने हेड को लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन मूव कर. Next is ball and socket joint. This type of joint is found in hips and shoulders. This allow movement in
many direction. We can swing our arm almost in all direction. देखो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपको आपके शोल्डर में मिलेगा, आर्म में मिलेगा, ठीक है. आप इसमें मूवमेंट कर सकते हो कोई भी डायरेक्शन में, ठीक है. Sliding joint, the sliding joint allow small sliding movement at the wrist, ankle and between the vertebrae of the backbone. ठीक है, आपको small sliding अपने wrist ankle पे कर सकते हैं. And it allows the back to bend, twist and turn. Such joint is called sliding joint. खाली आप इसको twist कर सकते हैं, turn कर सकते हैं. Next is hinge joint. These joints are like the hinges in the door. They allow movement of the bones in one direction, that is either up or down. These joints are found in elbow, fingers, knees and toes. ये joint हमें कहाँ मिलते हैं? Elbow में, fingers में, knees और toes. Care of bones. We should eat eggs, fish, fruits, green vegetables, drink milk to make our bones strong. देखो, अगर आपको अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाना, तो यू शुड ड्रिंक मिल्क, ठीक है. और जो मिल्क से बने प्रोडक्ट होते हैं आपको वो खाने चाहिए. वी शुड गेट आउट द इन ओपन बिकॉज सनलाइट हेल्प टू मेक्स आवर बोन्स स्ट्रॉन्ग. हमें सनशाइन में भी रहना चाहिए, हम विटामिन डी कहते हैं, वो भी लेना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी क्या हो जाती है, बोन्स क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है. नाउ मसल्स. मसल्स आर द सॉफ्ट टिश्यू विच लाई बिटवीन स्किन एंड बोन्स. These are around 640 muscles in our body. Muscles become stronger with regular exercise. The heart, stomach, intestines are made up of muscles. Muscles are attached to the bones with the help of special tissue called tendons. ठीक है, muscles क्या होती है? Soft tissue होता है जो skin और bones के बीच में. 640 muscles होती है हमारी body में, ठीक है. आपको regular exercise करनी चाहिए जिससे आपकी muscles क्या हो जाती है, strong हो जाए, ठीक है. और वो किससे अटैच होती है? स्पेशल टिश्यू, जिसे हम टेंडन्स कहते हैं. मसल्स एंड बोन्स वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस मूवमेंट इन द बॉडी. टू मसल्स आर रिक्वायर्ड टू मूव अ बोन एट अ जॉइंट. मसल्स वर्क इन पेयर बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड स्ट्रेचिंग. देखो, दो मसल्स की जरूरत पड़ती है हमें मूवमेंट करने के लिए, चाहे वो स्ट्रेच करना, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट करना हो, रिलैक्स करना हो या कॉन्ट्रैक्ट करना हो. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी रेज आवर लोअर हैंड, वन मसल इन द फ्रंट बिकम शॉर्टर by contraction and other muscle stretches to pull up the arm. When we lower our arm, the reverse happen. वही जो अपना हाथ खड़ा होगा, दूसरी वाली जो बोन है वो स्मॉल हो जाती है. ऐसे रिवर्स वाइसा वर्सा होता है. नेक्स्ट इज काइंड्स ऑफ मसल्स. द बॉडी हैज 3 टाइप्स ऑफ मसल. देखो 3 तरीके की मसल्स होते हैं, इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री. पहले हम वॉलेंट्री पढ़ेंगे. The muscles that are under our control are called voluntary muscles. Muscles in our arms and legs are the example of voluntary muscles. Voluntary muscles क्या होती है? जो हमारे कंट्रोल में होती हैं. जैसे आपके आर्म्स हो गए, लेग्स हो गए, ठीक है, मूव करने पर हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं. तो वो कौन सी मसल्स होती है? वॉलेंट्री मसल. Involuntary muscles, the muscles that work are not under our control are called involuntary muscles. They work automatically. Muscles in our heart, stomach, intestines are इनवॉलेंट्री मसल. जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती वो अपने आप वर्क करते हैं. जैसे आपका स्टमक हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया. दीज ऑल वर्क्स themselves. Cardiac muscles are present in the heart, makes the heart beat. These muscles functions automatically. Thus we do not have to think about telling our heart to beat. देखो आपका कार्डियक मसल, कभी आप हम हार्ट को बताते थोड़े कि आप बीट करो, वो अपने आप ही क्या करता है, वर्क करता है, बीट करता है. Now, how muscles work? Voluntary muscles are attached to the bones via strong bands of fiber called tendons. जो voluntary muscles होती है वो bones से attach होती है by a strong bands of fiber जिसे हम tendons कहते हैं. Muscles push the bones and thus produce movement. Muscles can contract and relax. When muscles contract or shorten, the bones come closer. जैसे वो contract करती है तो वो short हो जाती है, कम, और वो पास आ जाती है, ठीक है. मोस्ट ऑफ द मसल्स वर्क इन पेयर्स. व्हेन यू रेज योर लोअर आर्म, बाइसेप्स मसल्स इन योर अपर आर्म कॉन्ट्रैक्ट एंड पुश बोन्स इन द लोअर आर्म अपवर्ड. जैसे ही आप अपना लोअर आर्म ऊपर रेज करेंगे, जो आपके बाइसेप्स होते हैं मसल्स के अपर आर्म के, वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और वो आपके आर्म को पुल करेंगे अपवर्ड की तरफ. एट द सेम टाइम ट्राइसेप्स मसल्स रिलैक्स. व्हेन यू स्ट्रेटन द लोअर आर्म, द रिवर्स हैपन. द बाइसेप्स रिलैक्स एंड ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट. जब आप स्ट्रेटन करोगे, सीधा करोगे आर्म को, क्या होता है, बाइसेप्स तो रिलैक्स करते हैं और ट्राइसेप्स क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. नाउ केयर ऑफ मसल्स. नेक्स्ट इज हाउ
टू केयर योर मसल्स, आपको अपनी मसल्स की कैसे केयर करनी चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ मसल्स। वेल डेवलप्ड मसल्स मेक अ पर्सन लुक हेल्थी एंड ग्रेसफुल। प्रोटीन रिच फूड लाइक एग, मिल्क, मीट एंड ग्रीन वेजिटेबल्स शुड बी कंज्यूम रेगुलरली फॉर हेल्थी मसल। ठीक है, जो वेल डेवलप्ड मसल्स होती है जिनकी, कैसे लगते हैं लोग, हेल्थी लगता है और ग्रेसफुल लगता है। जैसे आपको प्रोटीन हो गया, रिच फूड जैसे एग, मिल्क वगैरह, वेजिटेबल्स आपको ये खाने चाहिए जिससे आपकी मसल्स क्या हो जाए, स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। थैंक यू।